everyone, I hope you are doing well. It has been a quite long time since I came on YouTube because काफ़ी बेकार रीड जा रही है honestly and I am fed up of it. But फिर मैंने सोचा कि आखिरी के 10-15 दिन बच्चे हैं मेहनत करने के लिए for like completing 1 year on my channel. So let's be consistent this time whether reach is there or not. So here I am with another random video. So yeah, let's move forward. सो मेरे पास कैमरा स्टैंड करने के लिए कोई प्रॉपर सेटअप नहीं हो पा रहा है, इसलिए हाथ से शूट कर रही हूँ. नेवर माइंड. सो दिस ईयर एंड दिस मंथ ओनली, द मंथ ऑफ अप्रैल, आई एम टर्निंग 19. reality check. Yeah, I'm turning 19 this year and it has been quite interesting. So I'll be sharing my 19 lessons which I learned when I completed 19. So I hope you will enjoy the video and ये काम आएगा I guess. जो अभी 16, 17, 18 के होंगे they might relate with some lessons. 19 years of surviving and मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि लाइफ में मैं कभी आगे वापस अपना वीडियो देख पाऊँ and see and smile on myself, I guess. So let's start the video in which I'll be telling 19 lessons that I learned when I turned 19. Let's go. So I'm changing the background again and again just to make the video creative, you know. So I have all those 19 lessons written in my notepad right here. So here we go with the lesson number 1, which is वेरी बेसिक और बहुत लेट समझ आया मुझे. मैं क्लास 12th बोर्ड्स वाली जो क्लास होती है नवंबर में, आफ्टर माई प्री बोर्ड्स मुझे रियलाइजेशन हुआ कि स्टडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ अनलेस यू आर गुड एट एनी अदर थिंग्स. लाइक डांस में एक्सट्रीम अच्छे हो, स्पोर्ट्स में एक्सट्रीम अच्छे हो, सिंगिंग में एक्सट्रीम अच्छे हो, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. बट अगर नहीं हो रहा है ये सब कुछ तो पढ़ाई बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है एंड ट्रस्ट मी ज़रूरी है. ये अभी समझ नहीं आएगा, 9, 10, 11, 12 में आ जाना चाहिए लोगों को समझ में. यूजुअली बच्चों को जल्दी आ जाता है, मुझे बहुत लेट समझ है, इसलिए मैं बता रही हूँ. लेसन नंबर 1 टर्निंग 19 इज स्टडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टडिंग इज़ मस्ट, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो जिस भी क्लास में हो, एज दैट एस योर एग्जाम्स, रटना नहीं है पर पढ़ना ज़रूरी है. अकल आएगी, देर से आएगी, तब रिग्रेट होगा कि क्यों नहीं पढ़ा. सो या एंड मूविंग फॉरवर्ड टू लेसन नंबर 2. बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा उसके लिए. सो लेसन नंबर 2 इज अ फ्रेंडशिप. इफ यू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज important, but make friends wisely, choose friends wisely. Not every friend is forever. Make a good friend and keep he or she, like, keep them forever, because friendship is important. You should have someone to rely on, to count on. So this is the second lesson. Make friends wisely. Do not trust anyone as easily. Not everyone who smiles at your face is your friend. Lesson number 3 is working on your hobbies. मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया. सेम लाइक 6th-7th में यूज टू डू अ लॉट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट स्टफ. फिर सडनली आई स्टॉप डूइंग इट. बैकग्राउंड में मेरा बेड आ रहा है. सडनली आई स्टॉप डूइंग इट. आई डोंट नो वाई. तो नहीं, यू शुड वर्क ऑन योर हॉबीज़ जस्ट टू कूल डाउन योर सेल्फ. हॉबीज़ पे काम करना चाहिए. नेवर लीव योर हॉबी. If you like to do painting, do painting. If you like dancing, do dancing. पढ़ाई ज़रूरी है बट एक कुछ होना चाहिए. जैसे कि फॉर मी व्लॉगिंग, और आई यूज टू डू मतलब सो मच क्रिएटिव स्टफ जो कि मैंने बंद कर दिया करना. घड़ी बंद आ रही है पीछे. और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई शुड डू इट, मैं अपनी स्टडी वॉल दिखाऊंगी किसी दिन. There is so much happening on that. I started doing art and craft again. So अपनी hobbies को नहीं छोड़ना है. Okay. So the next lesson is acceptance. Try
and learn to accept your mistake, to accept the way you are, because acceptance shows discipline, acceptance shows maturity, and acceptance is one of the biggest factor, biggest lesson I've learned in my life till now. Accepting your mistakes, accepting your negative points, accepting your flaws is totally okay. If my double chin looks like this, I will work on it, but this is how I am. इसके लिए I should not feel sad. हाँ, I can work on it अगर वो सही हो रहा है, otherwise accept it. So 4 लेसन के बाद कांस्टेंट बैकग्राउंड में मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि आप मुझसे उठा बैठा नहीं जा रहा है. एक तो मैंने हेयर वॉश किया और मैगी बन चुके हैं मेरे बाल. या सो आई वाज सेइंग द 5th लेसन इज नेटवर्किंग. नेटवर्किंग हेल्प्स यू अ लॉट. इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड सर्कल का गैंग बनाना है. नो, नेटवर्किंग मीन समथिंग लाइक बिल्डिंग कनेक्शन इन एवरी फील्ड. इट इज़ वेरी नेसेसरी. आफ्टर 12th यू विल नीड इट अ लॉट. तो अभी से स्टार्ट नेटवर्किंग, स्टार्ट मीटिंग पीपल विद गुड माइंड्स रेदर देन सुट्टा पीना किसी गली के कॉर्नर पर खड़े होके. मीट किसी नीट जे टॉपर से आई गेस, या जिसने CA फाउंडेशन क्रैक किया हुआ है. इट विल हेल्प यू ग्रो इन योर करियर alongside grow your personality. This was lesson number 5th. And the next lesson is showing gratitude. You must show gratitude क्योंकि I have heard it somewhere, like some sort of video मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था उस पर था कि be happy that you woke up, क्योंकि बहुत से लोग सोते हैं फिर उठ नहीं पाते. That is something gratitude you should like write gratitudes. Yeah, it will help you a lot. And alongside इसके साथ एक और लेसन है पूजा पाठ, जिसमें भी श्रद्धा है, यूनिवर्सल एनर्जी, गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जिनमें भी आप विश्वास रखते हो, वर्शिप देम. इट गिव्स अनदर काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, सम काइंड ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स मी अलॉट पर्सनली. मैं भगवान से बोल देती हूँ भगवान ऐसा करना है, आप जानो, एंड वो जानते हैं, वो कर देते हैं वो काम. सो दिस वॉज द अदर लेसन ऑल्सो. अब एक ही बैकग्राउंड में बन रहा है तो नेक्स्ट लेसन के ऊपर जाते हैं, विच इज मैनिफेस्टिंग. इफ यू मैनिफेस्ट समथिंग इट विल कम टू यू. जैसे कि मैं यूट्यूब के लिए काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रही हूँ. भगवान जी पता नहीं कब सुनेंगे, यूनिवर्स पता नहीं कब सुनेगा, बट आई नो, आई होप, आई हैव अ होप इन सम कॉर्नर ऑफ माई हार्ट कि मे बी भगवान सुन लेंगे, मे बी यूनिवर्स सुनेगा, या फिर मे बी इट इज़ नॉट मेड फॉर मी. दोनों चीज़ें हो सकती हैं. सो आई मैनिफेस्टेड फॉर इट. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. सो मैनिफेस्टेशन हेल्प्स अलॉट. सिर्फ यूट्यूब में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में मैंने और मैनिफेस्ट किया हुआ है, एंड आई गॉट द रिजल्ट. इसलिए आई एम सेइंग मैनिफेस्टिंग हेल्प्स. सो दिस इज द लेसन दैट यू शुड मैनिफेस्ट थिंग्स. अच्छा बोलो, बुरा बोलने में क्या है भाई, नहीं पढ़ के आए, बोलो पढ़ के आए, शायद कुछ अच्छा हो जाए. मैनिफेस्ट थिंग्स. दिस वॉज द लेसन. Now the next lesson is, let me see into my phone. Forgiveness. इतना सा दिल है और इतनी सी ही दुनिया है, जितनी जैसी बनती है गोल दुनिया, और इतनी सी ही लाइफ है. Forgive people. मैं तो सबको माफ़ कर देती हूँ, थोड़ा रैंट करती हूँ, थोड़ा ताने कसती हूँ, एंड इवेंचुअली आई फॉरगिव. क्योंकि मेरे बाल, क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा. फॉरगिव पीपल. कितनी सी लाइफ है, कुछ लोगों से बात ही होना बंद हो जाएगी, गुस्सी में. नेवर ब्रेक फ्रेंडशिप गुस्सा होकर के. नेवर ब्रेक एनी बॉन्ड गुस्सा होकर के. फॉरगिव पीपल. ट्राई फॉरगिविंग. सामने वाली की गलती है, फॉरगिव. खुद की गलती है, खुद की गलती है, से सॉरी. एडमिट योर मिस्टेक. ख़त्म करो. ईगो इज़ वेरी बैड. लाइक मेंटेनिंग दैट कि तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है तो मैं उससे क्यों बात करूँ, इज समथिंग अदर. बट इफ़ यू हैव सम गुड फ्रेंड्स, ईगो मत बीच में आने दो. फॉरगिव पीपल. किसी ने कोई गलती कभी कर भी दी है, फॉरगिव देम. ऑल्सो एक और लेसन है, अपने बालों का ध्यान रखो. कभी गुस्से में बाल मत कटाओ. मैंने कटवा लिए थे, उसके बाद से मेरे बालों की हालत बहुत बेकार हो गई है. दिस इज़ नॉट काउंटेड एज लेसन, बट इट इज़ अ लेसन इंडीड. बाल मैं दोबारा कभी कटवाने नहीं वाली हूँ.
The next one is prioritization. Prioritize your sleep, your food, your study, your life, rather than prioritizing other things. मुझे अभी कोई काम है, मुझे खाना खाना है, पर some friend video called me, भाई 2 मिनट रुक जा, खाना खा के लगाता हूँ, rather than खाना को छोड़ के और बात कर रहे हैं. हाँ, important बातें भी हो सकती हैं, but you know what I want to say, prioritize yourself first. The next lesson is leadership. Develop a leader in you. It helps a lot. I am currently doing an internship and I guess it is helping me a lot. तो एक leadership quality you must acquire. Introvert होते हैं बहुत लोग, but you must be able to lead a few lead a few people. This does not mean being dominant. Be a leader. Develop leadership skills. The next lesson, flexibility. किच मत करो. Try adjusting yourself in the environment you got. Recently I went to a camp where I saw people not even adjusting this bit. हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम है, हम वो नहीं करेंगे हमें वो प्रॉब्लम. Legit in that camp I did all those things which I never did in my life. जैसे कि गोबर से लीपना, दीवार में पेंट करना. I did every possible thing which was given to me. So be adaptable, be flexible. तुम्हें ही काम आएगा लाइफ में आगे फ्लेक्सिबिलिटी. जो लोग बहुत किच करते हैं ना, हमसे ये नहीं होगा, उनसे वो नहीं होगा, लाइफ भी फिर किच करती है उनके साथ. तो दिस इज द लेसन आई गॉट की स्टार्ट अडेप्टिंग थिंग्स. अब ये नहीं हर जगह कॉम्प्रोमाइज. आई एम नॉट सेइंग टू कॉम्प्रोमाइज. गर्लीज नेवर कॉम्प्रोमाइज. कभी कभी चलता है थोड़ा एडजस्ट करना, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना. वर्क्स. सो इमोशनल रेगुलेशन, इट इज़ अ चैट जीपीटी वर्ड, क्योंकि मैं मुझे समझ नहीं आता इसको बोलते क्या. यू मस्ट हैव control in your emotions, where to cry, where to not, where to laugh, where to not, where to express your love, where to not. You must have a control over it, क्योंकि कभी कभी it leads to negative things. So mind that, control your emotions. The next lesson I got is do read this book. This is a book about following your dream. एंड अगर ये बुक पढ़ लोगे तो घर वाले जितना भी पीसीएम लेने को बोले, तुम्हें अगर कॉमर्स लेना होगा तो तुम कॉमर्स ही लोगे. द नेक्स्ट लेसन आई गॉट इज एक्सप्लोर एवरी डोमेन, एक्सप्लोर एवरीथिंग. पर्सनली मैंने क्या सुना है स्टार्टिंग से, दो नाव में पैर रखोगे तो डूब जाओगे. बट फॉर मी एक्सप्लोरिंग एवरी डोमेन इज गुड. ऐसा बोलते ना, अगर तुम ये भी करोगे, वो भी करोगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे, तो कुछ नहीं अच्छा कर पाओगे. बट फॉर मी अगर तुम ये भी करोगे, वो भी करोगे, तो एटलीस्ट तुम्हें सब कुछ आएगा. पढ़ाई तुम कर ही रहे हो. एक्सप्लोर एवरी डोमेन. कोई किसी टॉपिक पे तुमसे कभी बात करे या कोई काम दे, यू मस्ट नो एवरीथिंग. दो आई डोंट नो पीसीएम एंड पीसीबी की पढ़ाई, बट दिस इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एवरी फील्ड मीन्स तुम्हें आर्ट एंड क्राफ्ट में आना चाहिए, तुम्हें डांस में आना चाहिए, तुम्हें खाना खाते भी आना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेलते हुए आना चाहिए. यू मस्ट नो एवरीथिंग. अब एवरीथिंग में नॉट इंक्लूडिंग सॉफ्ट स्किल्स की भाई तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स परफेक्ट होनी चाहिए, तुम द वे यू ड्रेस, द वे यू, ये सब हाँ इंक्लूड करता है. योर ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग. टू वर्क ऑन इट एंड बी वर्सेटाइल. सिंपली बी वर्सेटाइल. नेक्स्ट इज टॉक टू एवरीवन. इतनी सी लाइफ है, टॉक टू एवरीवन. क्योंकि बस करो सबसे बात. देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. आई टॉक टू एवरीवन. मैं नए स्कूल में गई थी 11th में. मेरे मतलब थोड़े बहुत इशू सबके साथ होते हैं. देयर वर फ्यू गर्ल्स जिनको मैं पसंद नहीं थी, बट सिंस द स्टार्ट आई वाज फ्रेंड विद एवरीवन. मैं ए सेक्शन में भी बात करती थी, बी में भी बात करती थी, सी था नहीं आएगा उस टाइम, ए और भी दोनों में बात करती थी. टॉक टू एवरीवन. अभी मैं कॉलेज में हूँ, मतलब पूरा कॉलेज तो नहीं कह सकती, बट एटलीस्ट माई डिपार्टमेंट नोज मी. मैं सबसे बात करती हूँ. सबसे बात करना चाहिए. सब 2 मिनट किसी से हंस के हाय बोल दोगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा. टॉक टू एवरीवन. इतनी सी लाइफ है, इतनी सी. अब ऐसे खत्म हो जाएगी. नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी. आई डिड थिंग्स जो मुझे लगता था मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, बट आई डिड दैट क्योंकि बिकॉज आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ. तो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन हलवाई. जोकिंग. नेवर अंडर एस्टिमेट योर capabilities. Never question your capabilities.
Girl, you go. Girl, you can. Boys also can. But yeah, you can. So the next lesson is self-care. कर लो अपनी स्किन की केयर, कर लो सेल्फ केयर, क्योंकि एक टाइम आएगा जब नहीं कर पाओगे सेल्फ केयर, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब इतने सारे पिंपल आ गए, देयर इज नो गोइंग बैक। अपने बालों की, अपने आप की प्रायोरिटाइज करो खुद को। धूप में निकल रहे हो, चुन्नी बांध के निकलो, सनस्क्रीन लगा के निकलो, नहा कर आने के बाद मॉइस्चराइजर लगाओ। केयर अबाउट योर सेल्फ, डू सेल्फ केयर, क्योंकि कोई नहीं करेगा तुम्हारे अलावा। नेल्स बढ़ाओ, नील पेंट लगाओ, लड़के अपने बाल ज़्यादा मत बढ़ाओ, कटवाओ, सब मेंटेन करो, क्योंकि जैसे अच्छा लगता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें लंबे बाल अच्छे लगते हैं तो तुम छोटे करवाओ। जस्ट थिंक, जिसको छोटे बाल पसंद है छोटे मेंटेन करो, बड़े बाल पसंद है बड़े मेंटेन करो, बट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। खुद की बॉडी है ना, लव इट। द नेक्स्ट लेसन है स्टार्ट जर्नलिंग और मेकिंग टू डू लिस्ट। दोनों अलग अलग लेसन हैं। स्टार्ट जर्नलिंग, राइटिंग अबाउट योर डे, क्योंकि बाद में कभी पढ़ोगे तो स्टूपिड लगेगा और हंसी आएगी, इसलिए डू जर्नलिंग। अच्छा लगेगा, मन को हल्का लगेगा, पर ऐसी सीक्रेट बातें मत लिखना क्योंकि यूजुअली लोगों की डायरी पकड़ी जाती है। बट राइट सिंपली अबाउट योर डे, 2 लाइन 4 लाइन वट एवर। एंड द नेक्स्ट लेसन विच आई विल से इज मेक अ टू डू लिस्ट। इट इज़ वे ईजियर टू शेड्यूल, टू मेंटेन योर डे, टू शेड्यूल योर डे, कि इस टाइम स्लॉट पे हमें ये करना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, schedule will help you a lot until unless you are distracted by your phone, which is the next lesson. I am addicted to phone, which I need to stop. It will never get addicted to anything. I play a lot of games phone pe, and suddenly I reach to a level 110 120 कोई भी level, and I delete that game instantly out of nowhere. So boom, खेल रही थी, काफ़ी आगे हूँ उस गेम में, बैक किया, अनइंस्टॉल, क्योंकि नेवर लेट एनीथिंग बी हैवी ऑन यू, डोंट बी एडिक्टिव टू एनीथिंग। इतना स्कोप होना चाहिए कि झट से छोड़ सको उस चीज़ को। एंड द नेक्स्ट लेसन इज दूर रहो गंदी आदतों से। आई हैव नेवर ट्राइड सिगरेट, आई हैव नेवर ट्राइड एनी काइंड ऑफ एल्कोहल, इफ यू से स्पेसिफिकली, नेवर ट्राइड फ्रूट बेयर, आई हैव नेवर ट्राइड रेड बुल, आई हैव नेवर ट्राइड हुक्का। जस्ट सेइंग, ट्राई सब करो, मैंने नहीं किया, तुम सब करो, अगर करना है तो, नॉट फोर्सिंग। डोंट बी एडिक्टिव ऑफ एनीथिंग, बहुत बेकार चीज़ें हैं। सेल्फ लव में आ जाता है ये सब, कि टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। क्या मतलब, 2 पल की खुशी के लिए डोंट डिस्ट्रॉय योर बॉडी, क्योंकि यही आगे तक साथ देने वाली है। तो आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम समवन, आई विल सी इट। Don't do these all things. Shit. These are shit. क्या था, मैं भूल गई।